અત્યાર સુધીમાં આપણે જે ભણ્યા whatsoever we have studied till now is about the monocotyledonous embryo and dicotyledonous embryo. Development of both kind of embryo we have finished. Now we have to look into the development of seed and development of fruit. Fine. So if we remember the event of the sexual reproduction, which involves fertilization, okay, after fertilization, the most important phenomena is that the ovule is going to convert into seed and the ovary is going to convert into the fruit. Now this information we have already studied in chapter number 5 in standard 11. Now in the seed you have two kind of arrangements what you have studied in this chapter in 12th standard. एक development of endosperm and development of embryo. So these two we have covered into the last lecture. Now these two get arranged into the seeds and seeds are enclosed by the fruits. So now we are coming to these components, the seeds and the fruits. Now very important characteristic feature of seeds we already have discussed in standard 11 as well, right? And the same characteristic feature of seeds and fruits are going to repeated in this chapter. So इसमें कुछ ऐसा अभी नहीं आने वाला है जो आपके लिए शायद नया हो. We are going to repeat those point of views. So that's the same diagram what you have studied earlier into 11th standard. Porbandar Center, is there any problem? Porbandar Center कोई problem है बेटा? Okay, shall I wait for you? ठीक है, no problem बेटा, no problem. If you want me to stop for a while, I can. No sir, no problem. All right, fine, all right. So seed from the ovule, after fertilization, ovule is going to develop as a seed. We know it. तो कौन से एडेप्टेशन, कौन से चेंजेस, कौन से वहां पर आपको स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखने को मिलेंगे. दैट्स व्हाट गिवन हियर. ऑलरेडी यू नो इट, सो आपके लिए नया नहीं है वो. माइंड इट वेरी वेल, राइट. देखिए, सीड इज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल फॉर्म्ड इनसाइड द फ्रूट, आपको पता है. Okay, second point, it is a final product of sexual reproduction. Seed is the final product of sexual reproduction in plant. In plant, ये पीछे लिखना जरूरी है, लिखा यहाँ पर नहीं है, लिखना जरूरी है. If we are talking about flowering plant, तो sexual reproduction की at the last moment जो last product जो होती है, that is a seed. ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. डू रिमेंबर दिस, राइट. कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, कोटिलिडोन एंड एम्ब्रियोनिक एक्सेस. सीड के मेन कंपोनेंट्स 3 हैं. देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ सीड. एक सीड का ऊपर का कवर जिसको आप बोलेंगे सीड कोट. सीड के अंदर अगर देखोगे तो कोटिलिडोन्स है जिसका नंबर है 2 एंड मोनोकोट के अंदर 1. एक मोनोकोट में है, डाइकोट के अंदर कोटिलिडोन्स 2 होते हैं एंड एक होती है एम्ब्रियोनिक एक्सिस जो दोनों में एक ही होती है. मोनोकोट में भी एक है, डाइकोट में भी एक है.
सो ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। स्ट्रक्चर ऑफ सीड का 3 कंपोनेंट में आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, सीड कोट, कोटिलीडोन और कोटिलीडोन्स, एंड थर्ड कंपोनेंट इज एम्ब्रियो इटसेल्फ, यानी कि एम्ब्रियोनिक एक्सेस। फाइन। सो इसमें किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। राइट, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट division or types or classification of seed. You have studied 2 types of embryo. एक एम्ब्रियो को मैंने बोला था डाइकोट एम्ब्रियो, एक एम्ब्रियो को बोला था मैंने मोनोकोट एम्ब्रियो। बट विथ रिस्पेक्ट टू द अरेंजमेंट ऑफ दोज सीड्स, दोज एम्ब्रियो विद इन द सीड्स मेरे पास 2 टाइप के होते हैं, राइट। What I wanted to convey you just before few moments, मैं यहां पे लिख रहा हूं एम्ब्रियो एंड सीड। ये दोनों अलग अलग टर्मिनोलॉजीज है, यू नो इट। सीड के 2 टाइप्स हमने स्टडी किए हैं अर्लियर। सीड के 2 टाइप्स हमने अर्लियर स्टडी किए हैं। एक है डाइकोट एम्ब्रियो, एक है मोनोकोट एम्ब्रियो। अब डाइकोट एम्ब्रियो जिस सीड्स के पास होते हैं और मोनोकोट एम्ब्रियो जिस सीड्स के पास होते हैं, उस सीड्स को हम क्या बोलेंगे? डाइकोट एम्ब्रियो वाले सीड को हम बोलेंगे नॉन अल्ब्यूमिनस। क्या बोलेंगे? नॉन अल्ब्यूमिनस। उसका मतलब है जिसके अंदर डैश नहीं होता है, फिल इन द ब्लैंक। नॉन अल्ब्यूमिनस वर्ड पहले आ चुका है, वी नो द मीनिंग ऑफ इट। तो क्या नहीं होता है तो हम उसको नॉन अल्ब्यूमिनस बोलते हैं। वलसाड सेंटर will give the answer. Yes. So it is also called non-endospermic. It is also called non-endospermic. दूसरा नाम है उसका। ओके, जिस सीड के पास मोनोकोट एम्ब्रियो है उसका मैंने नाम रखा है अल्ब्यूमिनस, यानी कि एंडोस्पर्मिक। इसका सीधा सा मतलब है कि उसके पास एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, राइट। तो अगर आप लिख रहे हो तो यू आर राइटिंग, नोटिंग इट डाउन, सो यू मे अलाउड टू फटाफट लिख लीजिए। एक 30 सेकेंड में हो जाएगा, आई थिंक 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं आपको, यू कैन नोट इट डाउन। चलिए, अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि वाई डाइकोट एम्ब्रियो वाला जो सीड है उसको हम नॉन अल्ब्यूमिस या तो नॉन एंडोस्पर्मिक बोलते हैं। तो वाई इट इज नॉट कंटेनिंग द एंडोस्पर्म? क्यों एंडोस्पर्म उसमें नहीं होता है? वलसाड। यस, राइट। क्योंकि जितना भी एंडोस्पर्म वो बना पाते हैं, whatsoever quantity of endosperm they are about or they could be able to synthesize during the seed development, it is getting finished up until the embryo is matured. जब एम्ब्रियो मैच्योर्ड हो जाता है तब तक तो पूरे का पूरा एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है, राइट। उसके बाद वो फिर से नया फूड का स्टोरेज फॉर्म बनाते हैं जो प्रोटीनियस होता है। मैंने आपको अर्लियर डिस्कशन में भी ये समझाया था।
और वो दोनों दोनों कोटिलिडोन्स के अंदर उसको स्टोर करेंगे प्रोटीन के, मैक्सिमम क्वांटिटी में प्रोटीन होता है, कुछ क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, बट मोर क्वांटिटी में उसके अंदर प्रोटीन होते हैं। डू रिमेंबर दिस, है ना? ओके। एंडोस्पर्म में क्या होता है कि एंडोस्पर्म की क्वांटिटी इतनी ज्यादा होती है कि इवन आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का मैच्योरेशन भी हो जाता है ना, उसके बाद भी उसके पास इतना ज्यादा एंडोस्पर्म होता है कि वो उसको स्टोर करके रख सकता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अल्ब्यूमिनस और द एंडोस्पर्मिक सीड। आई होप देयर इज नो डाउट इनटू दिस। सो सेम काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन इज गिवन हियर। एक है नॉन अल्ब्यूमिनस, सो देर इज नो रेसिड्यूअल एंडोस्पर्म, उसके पास एंडोस्पर्म नहीं होता है। पी ग्राउंडनट एंड बीन्स मींस डाइकोटिलिडोनस प्लांट्स के एग्जांपल्स है वो, राइट? सेम अल्ब्यूमिनस सीड्स, तो दे हैव सम एंडोस्पर्म व्हिच इज गेटिंग स्टोर्ड इनटू द सीड्स। एंड जो एग्जांपल यहाँ पे है वो व्हीट है, मेज है, बर्ली है, फाइन, जो कि मोस्टली मोनोकोट है। अब दोनों में एक्सेप्शंस दिए हैं, देखिए यहां पर दो एक्सेप्शंस मेरे पास हैं। एक है कैस्टर, एक है कोकोनट, एक है सनफ्लावर। ये सब डाइकोट है, राइट? और फिर भी ये अल्ब्यूमिनस के एग्जाम्पल में है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको नीट का एग्जाम्पल दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रहा हूं जो जिसमें से क्वेश्चन हो सकता है। ये डाइकोट है, फिर भी एक्सेप्शनली ये अल्ब्यूमिनस है, फाइन। अगर आप तीनों के प्लांट्स को देखो, तीनों प्लांट्स को देखो, किस किस ने कोकोनट का प्लांट देखा है? ट्री, ओके, गुड। किन्होंने केस्टर का प्लांट देखा है? किन किन लोगों ने केस्टर का प्लांट देखा है? ओके। किन किन लोगों ने सनफ्लावर का प्लांट देखा है? ओके। तीनों के प्लांट को अगर आप कंपेयर करो, उसके लीव्स बहुत बड़े होते हैं कंपैरेटिवली। एम आई वेरी करेक्ट? तो लीव्स बड़े होते हैं तो फोटोसिंथेसिस की उसकी जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज्ड है कंपेयर टू इट्स साइज, तो इसलिए वहां पे फूड ज्यादा बनता है। फूड ज्यादा बनता है तो एंडोस्पर्म भी ज्यादा बनेगा। तो भले ही वो डाइकोट है, लेकिन उसके पास एक एबिलिटी है, राइट? और वो एबिलिटी के साथ उसके पास एंडोस्पर्म का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा रहता है। अगर पूछेगा कोई नहीं, बट आपको पता होना चाहिए what is the reason behind that, है ना? So those are three exceptions which are given here, which are also dicot but albuminous. Okay. Is there any other doubt up to this level? यहां से किसी को कोई डाउट है? Okay. Now जो एग्जाम्पल यहाँ पे पीछे शेयर किया है, उसके पहले की स्लाइड में डाइकोटिलिडोनस प्लांट थे, यहाँ पे मोनोकोटिलिडोनस का एग्जाम्पल है। बाकी कंटेंट पीछे अगर देखो दोनों सेम ही है। ऑल राइट। एक और है यहाँ पर एक्सेप्शन, जिसको हम बोलेंगे एक्सेप्शन, राइट? तो एक्सेप्शन की बात ही अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो मैं पीछे जा रहा हूं इस स्लाइड में। सो जब हमने बात की थी ओव्यूल्स की, ओव्यूल्स के अंदर एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है, राइट? वो टिश्यू का नाम अगर किसी को याद हो, ओव्यूल्स के अंदर जो टिश्यू होते हैं स्पेशलाइज्ड टिश्यू, चलिए बरोड़ा, तरसाली। यस, स्पोरोजिनस टिश्यू होती है।
ओके, ये स्पोरोजेनस टिश्यू को भी हमने एक नाम दिया था, किसी को याद है वो नाम? वलसाड? पोरबंदर? गुड, इट इज न्यूसिलस, राइट, इट इज द न्यूसिलस। ओके, ये है पूरा इमेच्योर्ड स्ट्रक्चर, उसके अंदर ये है। जब वो मेच्योर्ड हो जाएगा, जब ये स्ट्रक्चर मेच्योर्ड होने वाला है न्यूसिलस, तो ओव्यूल जब मेच्योर होगा तो उसके अंदर एक एम्ब्रियो सैक बनता है, राइट। तो इसके बाद एक होगा न्यूसिलस, न्यूसिलस में एक होगा एमएमसी होगा और उसमें से एम्ब्रियो सैक बनेगा। ये पूरा हमने पढ़ लिया है। तो न्यूसिलस एंड एम्ब्रियो सैक, ये दो ही स्ट्रक्चर उसके अंदर होते हैं। ओके, अब से फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजेशन हुआ, मैं उसके बाद के स्ट्रक्चर की बात करता हूं। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसके बाद न्यूसिलस जो है इट इज गेटिंग यूज्ड अप, उसका यूज हो जाता है, यूटिलाइजेशन हो जाता है। वो फेनोमिना मैंने आपको समझाया था एक बार, अगर आपको याद है तो न्यूसिलस का यूज करके कोई एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू बनने वाला है सीड के अंदर। वो टिश्यू कौन सा है जो सीड के अंदर बनेगा, जिसके लिए न्यूसिलस डिसअपियर हो जाएगा, डी नेचर हो जाएगा और उसका पूरा कंपोनेंट यूज करके वो नई टिश्यू बनने वाली है। तो वो नई जो टिश्यू बनने वाली है इनसाइड द सीड, उसका नाम क्या है? कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड, एम आई करेक्ट? ओके, सूरत पालनपुर। वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर, इट इज एंडोस्पर्म। तो हमें याद रखना है कि एंडोस्पर्म को अगर बनना है तो न्यूसेलस को यूज अप हो जाना है। न्यूसेलस होगा तो एंडोस्पर्म नहीं होगा, एंडोस्पर्म है तो न्यूसेलस खत्म हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, दोनों में से एक ही हो सकता है, राइट? एम आई वेरी करेक्ट? अगर मेरे पास 100 रुपया है और ये 100 रुपये की पेन मुझे लेनी है, राइट, तो या तो मेरे पास 100 रुपए रहेंगे तो पेन नहीं होगी, अगर पेन मैं खरीद लेता हूं 100 रुपए देके तो मेरे पास पेन होगी, 100 रुपए नहीं होंगे। सिंपल सा लॉजिक है, उसमें एक ही लॉजिक काम करता है। बट अगर मेरे पास 150 रुपए है तो मैं 100 रुपए की पेन लेके मेरे पास दोनों बचेंगे ना, 50 रुपए का एक नोट भी बचेगा एंड पेन भी आ गया, तो थोड़े से रुपए भी है और पेन भी है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि 150 रुपया होता है, न्यूसेलस ज्यादा होता है थोड़ा, आप समझ रहे हो? तो 100 रुपए का उसने एंडोस्पर्म बना लिया, बट 50 रुपए का उसका न्यूक्लियस अभी बचा है। लेकिन वो रेयर केस में ही होता है, सब में ऐसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ केस में ऐसा होता है। दो एग्जाम्पल ऐसे दिए गए यहां पे आपको, फाइन। ये रहा दो एग्जाम्पल जिसके बारे में यहां पे बात की है। एक है ब्लैक पेपर, जिसको आप काला मरी बोलते हो, मरी, ब्लैक पेपर, है ना। और दूसरा है बीट, जो आपको अच्छा नहीं लगता सलाद में। वो किसको अच्छा लगता है बीट खाना? ओके, अच्छी बात है, इट इज गुड दैट यू लाइक इट। अगर अच्छा नहीं भी लगता है, जिसको अच्छा नहीं लगता है उसके लिए, उसको अगर आप स्टीम करके, स्टीम्ड करके, बाफ के खाओ तो अच्छा लगता है, इट विल गिव यू स्वीट टेस्ट।
राइट, इट इज वेरी गुड ब्लड प्यूरिफायर, है ना। बीट इज वेरी गुड ब्लड प्यूरिफायर, बीट आपके बॉडी में जाना ही चाहिए, जब तक मिलता है आपको खाना चाहिए, आपके ब्लड को वो प्यूरिफाई करता है, राइट। तो इट इज जनरल नॉलेज, आपको पता होना चाहिए कि इट इज वेरी हेल्दी काइंड ऑफ वेजिटेबल, फाइन। तो बीट में एंड ब्लैक पेपर के अंदर न्यूसेलस बच जाता है, इवन सीड डेवलपमेंट होने के बाद भी बच जाता है न्यूसेलस। सो दैट्स एक्सेप्शन विच इज गिवन हियर। ये भी नीट का क्वेश्चन है, ये भी नीट का पॉइंट है, आईएमपी करके आपको उसको कहीं पे पॉइंट आउट कर दीजिएगा। सो ओकेजनली इन सम, देखा, ओकेजनली, हर एक प्लांट में ऐसा नहीं होता है, हार्डली कुछ प्लांट में ही होता है। सम सीड्स लाइक ब्लैक पेपर एंड बीट, दे रिटेन रेमिनेंट ऑफ न्यूसेलस इवन आफ्टर द परसिस्टेंट, मीन्स जब सीड डेवलप हो जाता है, राइट, तब भी उसके अंदर न्यूसेलस रहता है, और उसका नाम है, उस टिश्यू का नाम है पेरिस्पर्म, पेरिस्पर्म, राइट। पेरिस्पर्म नाम याद रखना है, एग्जाम्पल है ब्लैक पेपर एंड बीट। पेरिस्पर्म है क्या? एक्सेस न्यूसेलस, जो कि सीड डेवलपमेंट के बाद भी उसके अंदर रहता है, फाइन। ओके, नाउ कम्स द इंटेग्यूमेंट ऑफ ओव्यूल्स। इंटेग्यूमेंट का मतलब है ऊपर का दोनों जो कवरिंग लेयर था, दो डबल इनर एंड आउटर इंटेग्यूमेंट्स थे, वो सीड जब डेवलप होते हैं ना, तब वो हार्ड हो जाते हैं, सूख जाते हैं, डिहाइड्रेट हो जाते हैं, ड्राइड अप हो जाते हैं। ड्राई होने के बाद वो हार्ड हो जाते हैं, टफ हो जाते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर बन जाते हैं, जिसको आप बोलते हो सीड कोट, क्योंकि अब वो सीड का ऊपर का कोटिंग यानी कि छाल बन जाते हैं, सीड कोट हम बोलेंगे उसको। सो इंटेग्यूमेंट ऑफ ओव्यूल्स हार्डन एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट, उसके बाद वो कन्वर्ट होके बन जाते हैं सीड कोट। सो सीड कोट का डेवलपमेंट किस में से होता है, क्वेश्चन आ सकता है। इंटेग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल्स किस में से होता है? इंटेग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल्स। ओके, तो जब आप ओव्यूल की बात कर रहे थे, ओव्यूल के इंटेग्यूमेंट की बात कर रहे थे, तब उसके अंदर एक छोटा सा होल रहता था, राइट। उस होल वाले पार्ट को हम क्या बोलते थे ओव्यूल्स के अंदर? वलसाड, यस, इट इज माइक्रोपाइल। सेम, अगर वहां पे था तो यहां पे भी वो स्मॉल होल रहने वाला है। सो इट हैज अ स्मॉल पोर, यहां पर भी स्मॉल पोर रह जाएगा, जो है माइक्रोपाइल, थ्रू विच ऑक्सीजन एंड वाटर एंटर्स इनटू द सीड। कब? जब उसका जर्मिनेशन होगा तब, राइट। तो जर्मिनेशन कब होगा? जब उसको तीन कंडीशन सूटेबिलिटी मिलेगी, एक टेम्परेचर, दूसरा वाटर और तीसरा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन एंड वाटर विल एंटर इनटू द सीड थ्रू माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल पहले भी था, अभी भी है, राइट। चलिए, इसमें किसी को कोई डाउट है बेटा? ऑल राइट। ओके, आई होप देर इज नो डाउट। किसी का हैंड रेज नहीं है तो मैं आगे जाता हूं। ओके, सीड का इंपॉर्टेंस। यस पोरबंदर, डाउट? ओके, सो सीड का जो इंपॉर्टेंस है, स्पेशली with respect to our own food production, that is agriculture. एग्रीकल्चर में सीड का क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम सबको पता है, फाइन। सो सीड एक ऐसा इक्विपमेंट है हमारे लिए जो हम यूज कर सकते हैं, लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, फॉर आवर एग्रीकल्चरल रिक्वायरमेंट एंड प्रैक्टिसेस। तो वो इसलिए कि सीड की खुद की
वो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो यहाँ पे डिस्क्राइब करी है। से फॉर एग्जाम्पल, एज अ सीड मैच्योर्स, सीड जब मैच्योर होता है तब बिकम्स ड्राइड, माइंड इट वेरी वेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सीड की कि सीड जब मैच्योर हो जाता है ना उसके बाद वो ड्राई हो जाता है। सो दिस इज द सुटेबिलिटी व्हाट वी रिक्वायर्स टू स्टोर देम फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसको हमें स्टोर करके रखना है लंबे समय तक। आपके किचन में देखो, आपके किचन की वो जो जार्स होंगी उसके अंदर काफी सारे अलग अलग टाइप के सीड्स स्टोर करके रखे हुए हैं, है ना। सो यू हैव मूंग, यू हैव चनाज, so there are many, you have choris, right? So there are many different types of seeds you are storing even in your jars of your kitchen. Different types of pulses you have. Even you have some cereals which are stored into your kitchens, storerooms, etc. You have some grains which are getting stored into your, they are also seeds, monocot seeds hai wo. Like you have wheat, you have rice, you have maybe sometimes you have maize seeds which are getting stored into your kitchens. So ये सब ड्राई है, जितने भी मैंने नाम लिए अभी तक 8-10 जो भी नाम लिए सब ड्राई सीड्स है। तो ड्राई है तो उसको आप स्टोर कर सकते हो। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर वो डेवलप करते हैं आफ्टर मैच्योरेशन, राइट। सो दे बिकम ड्राई बाय रिड्यूसिंग द वाटर। उसका वाटर का जितना भी कंटेंट होते हैं उसमें से नियरली टू 90% ऑफ वाटर वो रिड्यूस कर देते हैं, इवेपोरेट कर देते हैं। 10 to 15% ही वाटर वो खुद के पास रखते हैं। कौन? सीड, राइट। तो सीड कोट का वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, कोटिलीडोन का वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। सिर्फ एम्ब्रियो ही वो स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर वाटर रिमेन रहेगा। मीन्स 10 to 15% ऑफ मॉइस्चर विल बी रिटेन्ड, बाकी पूरा वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। इसीलिए सीड ड्राई हो जाता है, राइट। इसीलिए सीड ड्राई हो जाता है। ओके, अंदर का एम्ब्रियो अगर वाटर लॉस कर देगा तो एम्ब्रियो के सेल ड्राई हो जाएंगे, तो एम्ब्रियो मर जाएगा बेचारा। सो एम्ब्रियो इज नॉट गोइंग टू डाई। तो एम्ब्रियो अपना वाटर रिटेन कर देता है, बट माइंड इट वेरी वेल, उसके अंदर एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रेस हार्मोन बनता है जिसका नाम है एब्सिसिक एसिड। यहां पे लिखा नहीं है, यहां पे लिखा नहीं है, मैं को रिलेट कर रहा हूं जो हमने पढ़ा है आगे चैप्टर नंबर 13 में। सीड डोरमेंसी का हार्मोन किसको याद आया? हैंड रेज करो। गुड। तो सीड जब मैच्योर होता है ना तब उसके एम्ब्रियो के अंदर एब्सिसिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिससे एम्ब्रियो उसके मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रिड्यूस कर देगा। तो वो एम्ब्रियो पूरा डोरमेंट स्टेज में हो जाएगा। सो द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द एम्ब्रियो शोज डाउन, रिड्यूस हो जाएगी, and it may enter a state of dormancy or inactivity which is given there, right? Okay, किसी को कोई डाउट है? ओके, से फॉर एग्जांपल वही सीड को आपने लिया, उसी सीड को आपने वाटर, टेम्परेचर, एयर सब प्रोवाइड करा तो वो सीड जर्मिनेट हो जाएगा, रीएक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि उसको सूटेबल कंडीशन मिली है। So under favorable conditions, moisture, oxygen and available temperature, तीन उसको मिल जाएंगे, it can germinate. मीन्स ये जो डोरमेंसी है, ये डोरमेंसी ब्रेकडाउन होके वो एम्ब्रियो फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। बट वो फिर से एक्टिवेट होने के लिए उसको सूटेबल कंडीशन चाहिए। अगेन चैप्टर नंबर 13 का सबसे इनिशियल फेज जहां से हमने चैप्टर नंबर 13 को स्टार्ट किया था, वहां पर ये पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कशन में लिया गया था। ओके, किसी को कोई डाउट हो? किसी को कोई डाउट इसमें? ऑलराइट,
एडवांटेजेस ऑफ सीड्स, जब सीड बनता है तो क्या क्या एडवांटेजेस, एडेप्टेशंस जो है, जो हमें या तो नेचर को या तो प्लांट को फायदा क्या क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। पॉइंट नंबर 1, सिंस द पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, पॉइंट टू बी नोटेड, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन ऐसी इवेंट नहीं है कि जो वाटर के ऊपर डिपेंडेंट होगी, क्योंकि पॉलिनेशन तो वेक्टर से भी होता है और हर एक स्पीसीज ऐसी नहीं है जिसमें पॉलिनेशन का एजेंट वाटर होता है। वेरी फ्यू स्पीसीज, वेरी फ्यू जेनेरा, सॉरी, राइट, कि जहां पे वाटर एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट था, हाइड्रोफिली, बट वो बहुत ही कम है। बाकी के सभी जो प्लांट्स है, फ्लावरिंग प्लांट, उसमें पॉलिनेटिंग एजेंट वाटर नहीं है, तो वाटर से इंडिपेंडेंट है वो पूरा। सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल ऑन वाटर, सीड फॉर्मेशन जो है वो वाटर के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पे आपको पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्क्राइब करा है, व्हाई इट इज वाटर डिपेंडेंट। अभी इसके पहले जस्ट बिफोर 10 मिनट्स मैंने ये एग्जांपल समझाया आपको कि वो उसके पास जितना वाटर था वो वाटर उसने इवेपोरेट करा तब वो सीड बना। अगर वो इवेपोरेट नहीं करता वाटर को तो वो सीड नहीं बन पाता। आई होप आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। तो वो वाटर डिपेंडेंट एक्टिविटी हो गई। ओके, अगर उसको रीएक्टिवेट होना है तो अगेन उसको मॉइस्चर चाहिए, मींस वाटर चाहिए। तो वाटर दैट्स व्हाई इज स्ट्रेट वे कनेक्टेड विथ द सीड फॉर्मेशन। ओके, पॉइंट नंबर 2, better adaptive strategies for dispersal to a new habitat। सीड है, अगर सीड है तो सीड ड्राई होता है, अगर सीड ड्राई होता है तो वो एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स हो सकता है, फैल सकता है। कोई वेक्टर उसको उठा के लेके जा सकता है, दूसरी जगह पे उसको छोड़ सकता है, उसको सीड डिस्पर्सल बोलते हैं। एक जगह से दूसरी जगह तो ही वो जा सकता है अगर वो सीड बना है तो सीड उसको डिस्पर्सल के लिए भी उसका इंपॉर्टेंस है। इट हेल्प्स द स्पीसीज टू कॉलोनाइज इन अदर एरिया, दूसरे एरिया में। क्यों ऐसा? क्योंकि सीड के अंदर क्या है? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कैसा है? डोरमेंट स्टेज में है, तो वो काफी लंबे समय तक खुद को इनएक्टिव स्टेज में रख सकता है। एक जगह से दूसरी जगह जब डाइवर्स डिस्पर्स होगा, राइट, तब जब उसको सूटेबल कंडीशन मिलेगी तब वो जाके इवेपोरेट होगा, सॉरी जर्मिनेट होगा। ओके, थर्ड, दे कंटेन फूड रिजर्व, उसके अंदर स्टोरेज क्वांटिटी होती है फूड की। अगर वो डाइकोट है तो कोटिलीडोन के अंदर प्रोटीनियस फूड स्टोर होगा। अगर वो मोनोकोट है तो उसके अंदर स्टार्च के फॉर्मेट में एंडोस्पर्मिक फूड रिजर्व होगा। तो सीड के अंदर ये एक फायदा होता है, इसीलिए हम सीड को एज अ फूड यूज करते हैं। अगर आप ग्रेन देखो तो ग्रेन आपके लिए फूड ही है, रोटी बनती है, से फॉर एग्जांपल चावल आप जो बनाते हो, राइट। अगर आप पल्सेस देखो जिसको आप एज ए प्रोटीन के सोर्स को यूज करते हो, राइट, सो दे आर फूड रिजर्व, तो हम उसको एज ए फूड सप्लीमेंट या न्यूट्रिशन के लिए हम यूज कर सकते हैं। फाइन, सो दैट आर those are the 3 important characteristic features seeds have. Now furthermore, fourth characteristic feature, they have hard seed coat। सीड के अराउंड एक हार्ड प्रोटेक्टिव कवर होता है जो उसको लंबे समय तक अंदर जो छुपा हुआ एम्ब्रियो है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। वो हमने ऑलरेडी अभी पढ़ा 15 मिनट पहले, है ना। ओके, फिफ्थ पॉइंट ऑफ व्यू,
एक आगे एक पॉइंट आया था 2 स्लाइड पहले कि सीड्स आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। किसको ये स्ट्रक्चर याद है जो मैंने सेंटेंस बोला वो? ओके, सो सेम वे यहां पे लिखा है बीइंग द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोडक्ट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादातर क्रॉस पोलिनेशन होता है, राइट? 90% दे आर डूइंग क्रॉस पोलिनेशन। जब क्रॉस पोलिनेशन होता है तब दोनों पेरेंट अलग अलग टाइप के जेनेटिक कॉम्बिनेशन वाले होते हैं जो रिकंबाइन होता है। तो ये पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंस के वहां पर जो प्रोजेनी बनने वाली है, राइट, नई जनरेशन जो बनने वाली है, उसमें जेनेटिक कॉम्बिनेशंस जो होते हैं और वेरिएशन जो होता है वो इंक्रीज होता है। तो सीड वेरिएशन प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए एक इंपॉर्टेंट मीडियम बनता है। एंड द लास्ट वन, डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी, जो उसकी लास्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर जिसके बारे में हमने बात की थी कि डिहाइड्रेट होता है, डोरमेंट होता है, राइट? सो जब वो मैच्योर्ड होता है तो इट इज वेरी क्रूशियल। क्यों क्रूशियल हो जाता है? बिकॉज तब ही जब वो ड्राई होता है, जब वो डोरमेंट होता है, तब ही आप उसको स्टोर कर सकते हो। सो स्टोरेज करने के लिए ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर इंपॉर्टेंट है। लेटर ऑन दे कैन यूज्ड एज आइदर फूड थ्रू आउट द ईयर, जो आपके किचन में जो मैंने बोला था जार में आप स्टोर करके रखते हो, और इट कैन बी यूज्ड इनटू द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस लेटर ऑन फॉर ग्रोइंग द न्यू क्रॉप। या तो आप खाने के लिए यूज कर सकते हो लेटर ऑन, या तो आप एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में नई जनरेशन को ग्रो करने के लिए, नए क्रॉप को ग्रो करने के लिए यूज कर सकते हो। सो इतने एडवांटेजेस सीड्स से हमें मिलते हैं जिसका हम डेफिनेटली फायदा बहुत ही ज्यादा ही लेते हैं। ऑफ कोर्स हम ले ही रहे हैं, है ना? फाइन। जब हमने पोलन ग्रेन्स की बात की थी तब एक वर्ड आया था जिसको हमने बोला था वायबिलिटी, राइट? द सेम वर्ड एनकाउंटर्ड हियर, वायबिलिटी। वहां पे वायबिलिटी हमने चेक करी थी पोलन ग्रेन्स की, यहां पे वायबिलिटी हम चेक करेंगे सीड की। तो वायबिलिटी का मतलब तब भी हमने निकाला था, इट इज द स्टेज और स्टेट ऑफ बीइंग अलाइव। कितने समय तक, राइट, वो जिंदा रह सकती है, इट इज गेटिंग अलाइव, इट इज कॉल्ड वायबिलिटी। तो पोलन ग्रेन, हमने जब पोलन ग्रेन के बारे में पढ़ा था तो कुछ प्लांट्स ऐसे थे जिसमें ये जो वायबिलिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। किसी को याद है विथ एन एग्जाम्पल? किसी को अगर याद हो पोलन ग्रेन की वायबिलिटी का एग्जाम्पल, समथिंग कुछ डेज था? यस वलसाड। सर मोनोकॉट्स में 30 मिनट्स का होता है एंड सॉरी 30 मिनट्स का होता है एंड डाइकॉट्स में मोनोकॉट में कितना होता है बेटा? 30 मिनट्स। यस 30 मिनट्स, दैट्स ग्रेट, या गुड एग्जाम्पल। An example, Roaci and Limpics. Yeah, yes, good. Right. So exactly that way, viability of seed is also important for us. कि सीड कब तक जिंदा रह सकता है? इनएक्टिव स्टेज में है, सही फॉर एग्जांपल सीड के अंदर डेवलप एम्ब्रियो, तो वो एम्ब्रियो कब तक वायबल रह सकता है? कब तक आप उसको स्टोर करके रख सकते हो? कब तक वो अगेन डिस्पर्स होने के बाद जर्मिनेट होने की एबिलिटी उसके अंदर हो सकती है? दैट्स कॉल्ड वायबिलिटी। सो वायबिलिटी ऑफ सीड आफ्टर डिस्पर्सल, दैट्स द पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत ही एग्जांपल यहाँ पे 2-3 शेयर करे हैं जो आपके लिए एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, इन फ्यू स्पीसीज सीड्स लूज वायबिलिटी विद इन फ्यू मंथ्स। यहां पे शुरुआत मंथ्स से होती है, मंथ्स, राइट? तो कुछ मंथ तो सबकी होती ही है डेफिनेटली। सीड ऑफ मेनी स्पीसीज लीव फॉर ईयर्स। तो ये ज्यादा है, ये कम है। ईयर्स वाली नंबर जो है वो ज्यादा है, मंथ्स वाली नंबर जो है वो कम है। ये आपको याद रखना है। सो मेजॉरिटी ऑफ देम, उसके सीड्स ईयर्स तक
हम स्टोर कर सकते हैं, ईयर्स तक वो वायबल रह सकते हैं। तो उसी का एग्जाम्पल यहां पे नीचे दिया गया है, देखिए सम सीड्स कैन रिटेन अलाइव फॉर हंड्रेड्स ऑफ द ईयर्स, हंड्रेड्स ऑफ द ईयर्स, थिंक अबाउट इट, है ना। द ओल्डेस्ट इज दैट ऑफ ल्यूपाइन, दैट इज ल्यूपिनस आर्कटिकस, ल्यूपिनस आर्केटिकस, राइट। उसका यहां पर देखिए, दे आर एक्सकेवेटेड फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा, आर्कटिक टुंड्रा में जब वो खोद के जमीन के अंदर से निकाले गए तो वो देखिए 10,000 ईयर्स के बाद उसको खोद के निकाला, उसको जर्मिनेट किया ना, तो भी उसने जर्मिनेट होकर नए प्लांट को डेवलप किया। तो 10,000 ईयर की डोरमेंसी को ब्रेक डाउन करा था आपने। सीड्स किसके थे? ल्यूपाइन के, यानी कि ल्यूपिनस आर्केटिकस नाम के प्लांट्स के थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, वायबिलिटी का एग्जाम्पल है ये। ओके, सेम वे यहां पर दी 2000 ईयर, दूसरा एग्जाम्पल है, 2000 ईयर ओल्ड वायबल सीड इज ऑफ डेट पाम। 10,000 वाला कौन है? ल्यूपाइन। 2000 ईयर वाला कौन है? डेट पाम, खजूरी जिसको बोलते हैं, खजूर होता है ना, उसका उसका जो क्या प्लांट होता है उसको आप डेट पाम बोलते हैं, है ना। फिनिक्स डक्टाइलीफेरा नाम है उसका साइंटिफिक नेम, राइट। फिनिक्स डक्टाइलीफेरा, डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन ऑफ किंग हेरोल्ड्स पैलेस नियर द डेड सी। तो वो एक्सकेवेशन मतलब खोदना, खोदते खोदते वहां पे एक सीड मिला, वो सीड का जो कार्बन रेडियोमेट्रिक कार्बन डेटिंग होती है ना, उससे डेटिंग की तो 2000 ईयर ओल्ड था। उसको जब जर्मिनेट करा गया तो उसमें से भी सीड डेवलप होके नेक्स्ट जनरेशन के प्लांट हम प्रोड्यूस कर सके। तो दो ऐसे एग्जाम्पल हैं, एक 2000 ईयर वाला डेट पाम और एक 10,000 ईयर वाला आर्कटिक टुंड्रा का ल्यूपाइन का सीड। दो एग्जाम्पल यहाँ पे वायबिलिटी के शेयर करी गए हैं। All right, the last part of this chapter, and that is development of fruit from the ovary. तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तब, राइट, फर्टिलाइजेशन होता है तब हमने आगे बात की थी, शायद यहीं पर नो, कि ओव्यूल जब सीड बनाता है तो ओवेरी फ्रूट बनती है। ओके, ये दोनों प्रोसेस जो होते हैं वो है भले ही इंडिपेंडेंट बट होती है साइमल्टेनियस, राइट। ये सब साइमल्टेनियसली डेवलपमेंट होता है, अंदर सीड बनता है, ऊपर फ्रूट डेवलप होता है, राइट। अंदर की तरफ सीड डेवलप होता है, ऊपर की तरफ फ्रूट डेवलप होता है। ऑलराइट, सो डेवलपमेंट ऑफ सीड जब अंदर की तरफ ओव्यूल्स में होता है तब ऊपर जो ओवरी है वो फ्रूट्स को डेवलप करती है। तो ये दोनों प्रोसेस जो होती है वो साइमल्टेनियसली होती है। साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ होने वाली इवेंट है। दे आर बोथ आर डेवलपिंग साइमल्टेनियसली। एक और प्रोसेस में आपको समझाता हूं जो आपको ऑलरेडी पता है, राइट। से फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट रेस्पिरेशन, चैप्टर नंबर 12 स्टैंडर्ड 11 रेस्पिरेशन, उसमें दो मेजर इवेंट होते हैं। एक होता है ग्लाइकोलाइसिस, एक होता है टीसीए साइकिल। एम आई करेक्ट और नॉट? दोनों एक साथ होते हैं या अलग अलग होते हैं? दोनों एक साथ होते हैं या अलग अलग होते हैं?
वलसाड। सर ग्लाइकोलाइसिस के बाद टीसीएस साइकिल। सो दोनों अलग अलग होते हैं, राइट? ओके, अगर यहां पे आपको याद हो तो ग्लाइकोलाइसिस जब होता है तब BPGAAL बाई फोस्फोग्लिसराल्डिहाइड से जब फोस्फोग्लिसराल्डिहाइड बनता है, राइट, तब एक NADH2 बनता है। मींस एक जगह पर दो मॉलिक्यूल बनते हैं, 2 NADH2 बनता है। ऐसा कोई आपको याद है स्टेप? ओके, TCA साइकिल में ऐसा कुछ होता है, NADH2 या FADH2 फॉर्मेशन, राइट? कितने NADH2 बनते हैं TCA साइकिल में? साइकिल के अंदर 3, एंड एक बनता है FADH2 एक साइकिल में, करेक्ट और नॉट? सो टोटल तो 2 साइकिल होने वाली है, 2 पायरुविक एसिड, तो मैं यहां 6N2 कर देता हूं। आई होप आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। ओके, एक होता है इंटरमीडिएटरी रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2, कब? एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है तब, पायरुविक एसिड में से, करेक्ट है? देखिए, अब ये इसके वर्सेस में जब ETS की बात करूं, ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो प्रोडक्शन फैक्ट्री है ATP की, जहां से ATP बन रहे हैं, ATP का घाणवा निकल रहा है, जैसे भजिए का घाणवा निकलता है ना घर में, वैसे। तो ATP कहां से निकलते हैं? ETS में से निकलते हैं। अब ETS में क्या जाएगा तो ATP बनेगा, उसको इनपुट तो कुछ देना पड़ेगा ना। ADP को छोड़िए, ADP तो यहां पे आएगा, ADP में से ATP बनता है, लेकिन ATP बनाने के लिए हमें कुछ उसको देना पड़ेगा। या तो हमें देना है NADH2 या FADH2, ये दोनों में से एक जब ETS में जाएगा तब सामने ATP बन के बाहर निकलेगा। एम आई वेरी करेक्ट? एम आई वेरी करेक्ट? ओके, तो यहां पे आपको एक चीज में रिमाइंडर के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर, कंपैरिजन के तौर पर यहां पे आपको समझा रहा हूं कि ग्लाइकोलाइसिस में जब ये स्टेप हो रहा है, NADH2 निकला, तो वो NADH2 सीधा निकल के ETS के पास जाएगा। तो ETS जब उसमें से ATP बना रहा होता है तब यहां पे 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बन चुका है। वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड जब कोएंजाइम A बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम A, तब यहां पे 2 NADH2 नए बन गए, तब ये उसमें से फ्री हो गया, तो अगेन ETS ये 2 मॉलिक्यूल को लेके यहां पर, तो जब ग्लाइकोलाइसिस चल रहा था तब भी ETS चालू था, जब इंटरमीडिएट रिएक्शन हो रहा है तब भी ETS चालू है, जब TCA साइकिल चल रहा है तब भी ETS चालू है। साइमल्टेनियस प्रोसेस है, भले ही डिस्ट्रीब्यूशन उसका अलग आपके टेक्स्ट बुक में समझाया गया है, प्रोसेस साइमल्टेनियस है। आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस, है ना? अगर आप फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करो, यू कैन कोरिलेट, सेम काइंड ऑफ कोरिलेशन यू कैन फाइंड इट। तो कोई भी लिविंग सिस्टम है, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म में कोई भी मेटाबॉलिज्म की बात करो, उसमें से भले ही आपके टेक्स्ट बुक में ये पॉइंट पहला, ये पॉइंट दूसरा, ये पॉइंट तीसरा ऐसे दिया, वो आपको समझाने के लिए है, बट कहीं ना कहीं वो एक साथ ही होने वाली घटनाएं हैं। तो मैं वापस आ जाता हूं, तो जब सीड फॉर्मेशन की और जब फ्रूट फॉर्मेशन की बात करूंगा तो दोनों साइमल्टेनियस प्रोसेस है। वहां से मैं स्टार्ट करता हूं। The ovary develops into a fruit when the ovules are converting into seed at the same time. Now, transformation of ovule into seeds and ovary into fruits
प्रोसीड साइमल्टेनियसली, जो मैंने आपको पॉइंट ऑफ व्यू समझाया अभी डिटेल में वो। द वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप्स इनटू पेरिकार्प। ओवरी का जो छाल था, छाल मतलब उसका जो आउटर कवरिंग था, जब वो फ्रूट बन जाएगा तो फ्रूट की छाल बन जाएगी। फ्रूट की छाल को हम बोलते हैं पेरिकार्प। क्या बोलेंगे हम? पेरिकार्प। सीड की छाल को हम क्या बोलेंगे? सीड कोट। फ्रूट की छाल को क्या बोलेंगे हम? पेरिकार्प। ये वर्ड्स आपको याद रखकर परमानेंट स्टोर कर देना है, वरना वो कंफ्यूज कर देंगे एमसीक्यूज के अंदर आपको, राइट? सो वॉल ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड पेरिकार्प, डू रिमेंबर दिस। द फ्रूट्स मे बी फ्लैशी और इट कैन बी ड्राई फ्रूट। तो यहां पे क्लासिफाई करा गया है फ्रूट्स को बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फूड स्टोरेज। जिसमें फ्रूट स्टोर होता है, फूड ज्यादा क्वांटिटी में, वो फूल के बड़े हो जाते हैं, जूसी हो जाते हैं, जूस वाले हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्लैशी फ्रूट। एंड जिसके अंदर वाटर स्टोर नहीं है, जूस स्टोर्ड नहीं है, और सिर्फ न्यूट्रिशन ड्राई फॉर्मेट में है, उसको हम बोलेंगे ड्राइड फ्रूट। जूसी फ्रूट के एग्जांपल में आप मैंगो ले सकते हो, गुआवा ले सकते हो, पाइनएप्पल ले सकते हो। ड्राई फ्रूट के एग्जांपल में कैश्यू नट ले सकते हो, राइट? पीनट ले सकते हो, मगफड़ी। फाइन। सो दोज आर टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द फ्रूट्स बेस्ड ऑन काइंड ऑफ फूड स्टोरेज। इसमें किसी को कोई डाउट? ऑल राइट, ओके। वन मोर कैटेगरी है, एक और कैटेगरी है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स की, विच इज बेस्ड ऑन वेदर they are getting fertilized or not. Okay. तो मैंने दो कैटेगरी यहां पे बनाई है। एक, अगर फर्टिलाइजेशन होता है एंड फ्रूट बनता है। दूसरा, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है फिर भी फ्रूट बनता है। तो ये दो कैटेगरी मैंने सजाई है यहां पर। फर्टिलाइजेशन वाले फ्रूट को भी मुझे दो कैटेगरी में फर्दर डिवाइड करना है। एक का नाम है ट्रू फ्रूट, और एक का नाम है फॉल्स फ्रूट। अनफर्टिलाइज्ड जो है, नॉन फर्टिलाइज्ड फूड, उसको मैं बोलूंगा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। राइट? तो अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो या तो ट्रू फ्रूट बनेगा या फॉल्स फ्रूट बनेगा। फर्टिलाइजेशन होता नहीं है और फ्रूट बनता है तो वो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है। ट्रू फ्रूट डेवलप होता है फ्रॉम ओवेरी, फॉल्स फ्रूट फ्रॉम अदर पार्ट
ऑफ फ्लावर, नॉट ओवरी, ओवरी नहीं, ओवरी से दूसरा कोई पार्ट है अगर उसमें से बनता है, इट इज कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक है तो वहां पे फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है, वो स्पेशल कैटेगरी ही है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है जो आपको याद रखना है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू योर नीड, है ना। सो फॉल्स फ्रूट, ट्रू फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, देयर आर 3 कैटेगरीज, आपके टेक्स्ट बुक में दी गई है परफेक्टली, राइट। सो फ्रूट की जो डेफिनेशन है, सॉरी डेफिनेशन क्या, क्लासिफिकेशन है जो आपकी टेक्स्ट बुक में है, अकॉर्डिंग टू दैट फ्रूट्स आर ऑफ 2 टाइप, ट्रू फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट। मैंने अभी समझाया था, अगर इट इज डेवलपिंग फ्रॉम ओवरी इट इज ट्रू फ्रूट, not ovary, other part than the ovary, then it is called false fruit. So true fruit, in this fruit develops from only from the ovary, only from the ovary, other floral parts degenerate हो जाते हैं and गिर जाते हैं, fall off. So most of the plant में ऐसा ही होता है, but कुछ plant ऐसे होते हैं false fruit. In this the thalamus also contributes to fruit formation. Thalamus जो कि फ्लावर का बेस का पार्ट है, नीचे का, उसमें से फ्रूट बनता है। एग्जाम्पल है एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड कैश्यू नट, काजू। 3 ऐसे हैं जिसमें थैलेमस में से फ्रूट बनता है, राइट। ये आपकी नीट का एग्जाम्पल है, नीट में आएगा क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन, है ना। ऑल राइट, अब आ गया थर्ड, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। In some species, fruit develop without fertilization. Fertilization ही नहीं होता है. Such fruits are called पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। एग्जाम्पल बनाना, जो आप हर रोज खाते हो, जिसमें सीड नहीं होता है। सीड कब होगा? फर्टिलाइजेशन होगा तब, राइट। तो वो फर्टिलाइजेशन के बगैर ही बनता है। सो पार्थेनोकार्पी कैन बी induced through the application of growth hormones. Point to be noted. पार्थेनोकार्पी प्रोड्यूस कौन करता है? ग्रोथ हार्मोन। कौन करता है? ग्रोथ हार्मोन। इफेक्ट किसकी है? ग्रोथ हार्मोन की, राइट। वो कैसे पता चला? जब ऐसे फ्रूट्स के जो प्लांट है उसमें ये फ्रूट के डेवलपमेंट के प्रोसेस को जब रिसर्च करा गया, तब हमें पता चला कि ये तो हॉर्मोन्स का कमाल है भैया। किसका कमाल है? हॉर्मोन्स का कमाल है। तो हमारे दिमाग में, हमारे मतलब जो साइंटिस्ट ने वो स्टडी किया था, उसका दिमाग अलग ही तरीके से चला कि हॉर्मोन्स तो अपने पास जितने चाहिए उतने हैं, अभी हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ऑक्सीन्स हो, जिबरेलिन्स हो, साइटोकाइनिन्स हो, एब्सिसिक एसिड्स हो, इथिलीन्स हो, जो भी है, पांचों 5 कैटेगरी के एंजाइम्स को हम एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, सिंथेसिस भी कर सकते हैं। तो जितने चाहिए उतने हैं। तो चलो ना, और दूसरे क्रॉप्स को भी हम, ये हॉर्मोन्स का ही इफेक्ट है तो कोई और भी मॉडिफाई करके देखते हैं। तो अभी तो हमने काफी सारे ऐसे सीड्स को मॉडिफाई करके पार्थेनोकार्पिक बना लिया है। आपको शायद पता भी नहीं होगा कि हम, अभी तो सीजन धीमे धीमे आएगी ग्रेप्स की। किसने किसने देखी है ग्रेप्स? सबने देखी होगी ना। लेकिन आपने कभी भी सीड वाली ग्रेप्स को खाया है? सीड वाली ग्रेप्स किसने किसने खाया है? सीड वाली ग्रेप्स, ओके। अगर आप ढूंढने जाओ मार्केट में तो हार्डली मिलती है, कभी कभी मिलेगी, रेयरली मिलती है। ओरिजिनली जब हम छोटे थे तब सीडलेस ग्रेप्स नाम का कोई ऑप्शन था ही नहीं। ग्रेप्स पूरी सीड्स वाली ही आती थी, राइट। बट हमने क्या करा है, अभी हमने डेवलप कर लिया वो क्रॉप को पार्थेनोकार्पी से, तो अभी सीडलेस हो गई, पार्थेनोकार्पिक वो फ्रूट हो गया।
सो मेनी फ्रूट्स जो सीडलेस वेराइटी है वो हमने पार्थेनोकार्पी से डेवलप करी है। कैसे? ग्रोथ हार्मोन के कॉम्बिनेशन को अप्लाई किया उसके ऊपर। आई होप आई एम वेरी क्लियर। ऑल राइट, गुड, फाइन। ओके, अब एपोमिक्सिस एंड पोलीएम्ब्रियोनी। यस, वलसाड सेंटर। सर लास्ट वाली स्लाइड में जो लास्ट फोटो वाटरमेलन का था, हम्म, तो ऐसा तो कभी वाटरमेलन मैंने मतलब नहीं देखा है कि उसमें सीड ना हो कंप्लीटली। हमने नहीं देखा है, इंडिया के अंदर वो वैरायटी नहीं है, राइट। अगर आप क्या है कि रील्स काफी सारी ऐसी आती है जिसमें वो फ्रूट्स होते हैं, से फॉर एग्जाम्पल मैंगो, चाइना की वेराइटीज, वो मैंगो को बीच में से काटते हैं, खोलते हैं, देयर इज नो गोट लाइन टू दैट। पता है, किसी ने देखी है वो रील, राइट। सो सीडलेस वेराइटी इवन मैंगो में डेवलप कर ली है। इतना तो उसका तो सीड नहीं, सीडा होता है इतना बड़ा। उनको भी पार्थेनोकार्पी से उसने डेवलप करा है, राइट। यस, अगर आप सीडलेस वेराइटीज ऑफ वाटरमेलन की बात करो, उसका ओरिजिन है जापान, जापानी वेराइटी है वो, राइट। उसका ओरिजिन जापान है। इवन वो तो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स क्रिएट करते हैं, शेप है ना, स्क्वायर, ऐसे ऐसे शेप बनाते हैं वो जापानीज। दे आर वेरी एडवांस इनटू फ्रूट प्रोडक्शन, है ना। ऑलराइट, सो हम बात करते हैं अभी नेक्स्ट लेवल, एपोमिक्सिस एंड पोलीएम्ब्रियोनी, राइट। सो एपोमिक्सिस किसको हम बोलेंगे? तो प्रोडक्शन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। पार्थिनोकार्पी नेचुरल इवेंट है, राइट। वो जिस प्लांट में है, तो प्लांट के अंदर वो जो घटना बनती है उसको हम बोलते हैं एपोमिक्सिस, जिसमें सीड का डेवलपमेंट होता है। सीड का डेवलपमेंट एपोमिक्सिस है, फ्रूट का डेवलपमेंट है पार्थेनोकार्पी, राइट। देखिए, एपोमिक्सी एंड पार्थेनोकार्पी में फर्क है। डू नॉट मिक्स बोथ दिस टर्मिनोलॉजी। सो यहां पे अगर मैं एपोमिक्सिस की बात करूं तो वो है सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो मैं यहां पे आता हूं, इट इज सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। और अगर मैं पार्थेनोकार्पे की बात करूं, इट इज फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। दोनों अलग फेनोमिना है, राइट। तो पार्थेनोकार्पी मींस फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड एपोमिक्सिस मींस सीड विदाउट द फर्टिलाइजेशन। ये दोनों का आपको डिफरेंस खास याद रखना है, एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं कर देना है। डोंट मिक्स एपोमिक्सिस। है ना। ओके, सो एग्जाम्पल यहां पे एपोमिक्सिस का दिया गया है, सम स्पीसीज ऑफ एस्टरेसी एंड ग्रास। एस्टरेसी फैमिली एंड ग्रास की फैमिली में एपोमिक्सिस कॉमन है, मींस ऐसे सीड्स जो विदाउट फर्टिलाइजेशन क्रिएट होते हैं। पॉइंट। नाउ एडवांटेज हम कैसे ले सकते हैं इसका? इट इज द फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत ही यूनिक सेंटेंस यहां पर दिया गया है आपके लिए, राइट। देखिए, इट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन that mimics sexual reproduction. Okay, if no fertilization, right, if there is no fertilization,
वैसे रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एम आई वेरी करेक्ट? ओके। जहां पर सीड प्रोड्यूस होता है, सीड, तो सीड इज लास्ट प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सीड प्रोड्यूस होता है, तो सीड जहां पे प्रोड्यूस होता है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब फर्टिलाइजेशन होता नहीं है एंड सीड प्रोड्यूस होता है, तो वो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सीड प्रोड्यूस होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो करता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नकल, मिमिक करता है वो, किसमें? एपोमिक्सिस में। सो एपोमिक्सिस इज कंसिडर्ड टू बी मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इज मिमिकिंग, बिकॉज सीड तो बनाता है जो बनना चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, जो बनता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहां पर। सो एपोमिक्सिस में ये होता है। सो इट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें किसी को कोई डाउट, कंफ्यूजन पूछ सकते हो? ऑलराइट। अब सीड का हमने जो एग्जाम्पल हमारे दिमाग में बिठा के रखा है इंपॉर्टेंस से रिलेटेड, विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंपॉर्टेंस, वो है एग्रीकल्चर। आई रिपीट, वो है एग्रीकल्चर। सीड्स हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं। फाइन। तो अब सीड के बारे में जब बात करें हम, इसमें से कोई ऐसा है जिसका एग्रीकल्चर से डायरेक्ट कनेक्शन है? मींस फादर या फैमिली का कोई मेंबर जो खेती करता हो, विच आर फार्मर्स। कौन कौन है? हैंड रेज कर सकते हैं। फार्मर्स है अगर कोई घर में। ओके, गुड। सो जब भी आप नई सीजन आती है एंड यू आर सपोज टू प्लाउ योर फील्ड, तो आपको उसके लिए सीड्स चाहिए और वो सीड आपको खरीदने पड़ते हैं। एवरी ईयर आपको खरीदने पड़ते हैं यूजुअली, राइट? जो महंगे होते हैं, विच आर वेरी एक्सपेंसिव। सो हमने क्या करा है, यूजुअली वो सीड्स ऐसे होते हैं जो हाई क्वालिटी के होते हैं, ज्यादा उपजाऊ होते हैं, हाइब्रिड वेराइटी होती है यूजुअली। तो इसलिए हमें हर साल खरीदने पड़ते हैं जो बहुत महंगे होते हैं। अगर वो सीड खरीद के हमने प्लांट उगा लिए और नेचुरली उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाने के लिए छोड़ दिया नेचुरली, तो वो रिकम्बाइन हो जाएंगे। दो जेनेटिक वेराइटीज मिक्स होके वो अपने ओरिजिनल कैरेक्टर को खो देंगे, मिक्स हो जाएंगे, वेराइटी प्रोड्यूस हो जाएगी। फाइन। तो हमें तो वही सेम टू सेम कैरेक्टरिस्टिक वाले ही प्लांट नेक्स्ट जनरेशन में चाहिए, तो हमारे लिए वो सूटेबल नहीं है, राइट? कि वही सीड को हम बार बार यूज करें, उसकी जनरेशन के सीड को हम बार बार यूज करें, वो पॉसिबल नहीं है फार्मर्स के लिए, राइट? क्योंकि वेरिएशन क्रिएट हो जाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वेरिएशन क्रिएट करता है, वेरिएशन हमें चाहिए नहीं। इसलिए जो फार्मर्स होते हैं उसको हर साल नए सीड्स लाने पड़ते हैं, जो कि क्वाइट एक्सपेंसिव प्रोसेस है। तो हमने क्या कर लिया, हमने सीड को एपोमिक्टिक सीड में कन्वर्ट करने की ट्राई करी है। सो डेवलपमेंट ऑफ एपोमिक्टिक स्पीसीज ऑफ सीड्स, ताकि क्या हो कि जो फार्मर्स है उसको हर साल नए सीड्स लेने ना पड़े, उसके लिए ये एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। सो इन सम स्पीसीज diploid egg cells is formed without reductional division and develops into embryo without fertilization. अब काफी सारी स्पीसीज नेचुरली ऐसी है जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और डायरेक्टली डिप्लॉयड सेल होता है, वो सीधे सीधा एग सेल में कन्वर्ट हो जाता है। मींस उसका नॉर्मल जो सेल होता है वो एग सेल बन जाता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है, राइट? डिवीजन नहीं, डिवाइड नहीं होता है, सीधा डिफरेंशिएट हो जाता है, डिफरेंशिएट हो जाता है। डिप्लॉयड सेल एग सेल में सीधा डिफरेंशिएट हो जाता है और उसमें से एम्ब्रियो बन के सीड बन जाता है। तो वैसा काफी सारे अलग अलग टाइप के सीड में देखने को मिलता है, जिसके एग्जाम्पल यहां पर है। मेनी स्पीसीज लाइक सिट्रस फ्रूट,
जितने भी सिट्रस फ्रूट्स है सभी में। तो वो सीड लेके अगर आप इम्प्लांट करते हो, उसके अंदर पानी डाले और उसमें से जब प्लांट निकलेगा, जर्मिनेशन होगा, तो मेरे पीछे आप देख सकते हो यहां पर सीड एक ही है, जर्मिनेशन हुआ ना तो 1, 2 एंड 3 प्लांट उसमें से निकले। 3 प्लांट क्यों निकले पता है? उसके अंदर 3 एम्ब्रियो थे। एम्ब्रियो कितने थे? 3। तो फर्टिलाइजेशन से तो एक ही एम्ब्रियो बनता है, बाकी के 2 एम्ब्रियो कैसे बने? विदाउट फर्टिलाइजेशन। वो है एपोमिक्सिस। ये रहा, एपोमिक्टिक सीड बोलते हैं उसको। तो वहां से वो कैच किया हमने फेनोमेना। तो इन मेनी स्पीसीज लाइक मेनी सिट्रस मैंगो वेराइटीज, सम न्यूसेलर सेल, न्यूसेलस के सेल surrounding the embryo sac divide and protrude into the embryo. रियल एम्ब्रियो सेक में एक एम्ब्रियो बनता है, बट न्यूसेलस के जो आजू बाजू में सेल है उसमें से नए एम्ब्रियो बन सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम है, ये ओरिजिनल, ये जो है ओरिजिनल एम्ब्रियो है और ये है एम्ब्रियो सेक। अब यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ऐसे आजू बाजू में 4 और एम्ब्रियो बन चुके हैं, राइट? वो ओरिजिनल एम्ब्रियो नहीं है, वो एपोमिक्टिक एम्ब्रियो है। तो सीड एक यहां पर, ये सीड एक है लेकिन एम्ब्रियो 5 है यहां पर, 5 एम्ब्रियोज आर गिवन। बाकी के 4 जो है कहां से बने? न्यूसेलस के टिश्यू में से बने। कहां से बने हैं? न्यूसेलस के टिश्यू में से। सो thus each ovule contains many embryo। कोई भी ओव्यूल के अंदर होने चाहिए एक, बट बन गए यहां पर 5, मैनी। किस में होता है ऐसा? सिट्रस में एंड मैंगो में, राइट? ओके, अकरेंस ऑफ मोर देन 1 एम्ब्रियो इन अ सीड इज कॉल्ड पॉलीएम्ब्रियोनी। तो यहां पर एपोमिक्टिक सीड जो होते हैं उसका रिजल्ट है पॉलीएम्ब्रियोनी, उससे एम्ब्रियो एक से ज्यादा बन जाते हैं सीड्स के अंदर, तो वो है पॉलीएम्ब्रियोनी। इफ द सीड्स फ्रॉम हाइब्रिड आर शोन, हाइब्रिड वेराइटी के अगर आप सीड को ग्रो करो, शोन, if the plant in the progeny will segregate and lose hybrid character, वो जब खुद के फ्लावर, खुद के फ्रूट बनाएगी, उसमें से सीड निकलेंगे, अगर उसको आप अगेन ग्रो करोगे तो वो अपने कैरेक्टरिस्टिक फीचर को लूज करती जाएगी। क्यों? क्योंकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेराइटीज क्रिएट होती है, तो वो अपने कैरेक्टरिस्टिक फीचर को लूज कर देती है। तो इफ द सीड्स फ्रॉम हाइब्रिड आर शोन एंड the plant which are going to be progeny, next progeny, they will segregate and lose the hybrid character, characters loss हो जाएंगे। So production of hybrid seed is costly, so hybrid seeds are expensive। हाइब्रिड सीड्स को हर एक बार खरीदना पड़ेगा। मैंने बोला ना आपको कि जो भी फार्मर्स है वो हर साल हाइब्रिड सीड को खरीदना पड़ता है उसको, राइट? उसको बनाना कॉस्टली है, तो नेचुरल सी बात है हाइब्रिड वैरायटी के जो सीड्स है ना वो एक्सपेंसिव है। सो इफ द हाइब्रिड्स आर मेड इनटू एपोमिक्टिक, तो वही हाइब्रिड सीड को अगर हम एपोमिक्टिक बना दे, एपोमिक्सिस का मतलब क्या होता है? वहां पे होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो पॉलीएम्ब्रियोनी, मोर देन 1 एम्ब्रियो बना देगा। तो वहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है वेरिएशन नहीं होगा। So if the hybrids are made into apomictic, there is no segregation of character into the hybrid progeny and farmers can keep on using hybrid seeds into many new crops. Generation by generation वो use कर सकते हैं। ये एक important फायदा मिलने वाला है अगर हम नॉर्मल हाइब्रिड वेराइटी के सीड्स को एपोमिक्टिक सीड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। एपोमिक्सिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो वेरिएशन प्रोड्यूस नहीं करता है एंड जनरेशन बाय जनरेशन हम सीड्स को रीयूज कर सकते हैं, राइट? सो दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर। फाइन, हम यहां पर फर्स्ट चैप्टर खत्म करते हैं एंड मंडे से आरंभ बैच में जो भी सिलेक्शन जिसका भी हुआ है वो बच्चे सिर्फ ऑनलाइन में आएंगे और पूरा जो कोर्स है, राइट, वो आरंभ बैच में ऑनलाइन में ही लूंगा यहाँ से।
बाकी ये सब बच्चे मेरे त्रास में से मुक्त होके ऑफलाइन ही पढ़ने वाले हैं. Fine. So I'll see you later. Take care.